Hello, everyone. Welcome to Talk with Topper show. And in this podcast today, we have Gaurav, and he's a B.Ed aspirant. So we will talk to him everything related to preparation strategy. His score is 99.97 percentile, right? So 99.89 percentile. So Gaurav, first of all, congratulations. And we want to know what was your first reaction when you saw this result. Sir, I was expecting above 95 percentile. Initially, I was not knowing about the percentile system. I thought that CET is about marks only. So after the paper, I knew that I will score above 75 plus questions out of 100. Okay. So later on, I came to know about this percentile system. So I was sure about 75 plus questions out of 100. So 75 question, when 75 plus question out of 100. out of 100, And मतलब first paper. and what about your ELCT? So ELCT was it was by mistake. I ticked that option while filling the form because in our region no one gives that ELCT paper. Only in Pune, Bombay region that paper is given. Where I stay, there general B.Ed CET score is applicable. That ELCT is for only for English medium, na? Right. Because as I can see, now you're in your result, it's 84.76 percentile. Yes sir. मतलब मैं ज्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं किया था ELCT के लिए. पेपर दिया था, मेरा फोकस. Okay. Now next thing, just share your about yourself, about your educational background and why you want to do B.Ed. First, we want to know that, and after that, we'll discuss about the exam strategy. Initially, sir, I completed my engineering from Mumbai University. While doing engineering, I developed the hobby of teaching because my roommate were weak in other subjects. So in the evening after college, I was discussing doubts, and also I was clearing their doubts by teaching on general subject or a general topic. So that time only I developed this hobby of teaching. So I thought that we can pursue this profession. But after completing my engineering, so in 2019 that Corona period came. 20 something. So I came back to my hometown. So here I was not having any option after engineering what to do here, because all the jobs are in metro cities only. I belong to a small town, so I came back here. Then here everyone were engaged in doing BSc or BA, after that completing B.Ed and doing this noble profession, teaching job. So here they said that you can't join any government school or college unless you complete B.Ed. Right. So I did externally. तो फिर यहाँ पे वही था एक मतलब मुझे गाइडेंस मिला था कि आपको B.Ed करना है और अगर टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, या फिर मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए. ओके. तो फिर आप प्राइवेट में रहोगे तो फिर इस पे चल जाएगा. बट आपको पता है कि स्मॉल टाउन में सबका फोकस गवर्नमेंट जॉब के लिए रहता है. रूरल एरिया में तो एकदम दे आर, मतलब कुछ भी हो जाए, दे नीड अ गवर्नमेंट जॉब. राइट. सो इसलिए MA इकोनॉमिक्स के बाद में फिर मैंने ये B.Ed का ऑप्शन चूज किया है. ओके. So now next thing, when you started the preparation for this exam? Sir, for this B.Ed CET? हाँ, this B.Ed entrance के लिए आपने preparations कब से start किया? Sir, after Diwali, means before 5 to 6 months before I started this preparation. And हमारे यहाँ पे जो रहता है कट ऑफ इतना हाई नहीं जाता है, तो I started before 5 to 6 months. First I downloaded the syllabus and then I went through. So actually I was having engineering background, so mathematics and reasoning was my strong point. Only for GK and that teaching aptitude I watched YouTube videos. And about this channel I was already knowing about your channel. I took reference of your channel. Okay. So कब से basically follow कर रहे हो आप मेनूवर के चैनल को? सर और एक बात है इसमें, ऑलरेडी 3 साल पहले मैं एक CET दे चुका हूँ. ओके.
तब मुझे आपके चैनल के बारे में पता चला था। मतलब कौन सा तब सीटी? वो लॉ सीईटी था सर, एलएलबी के ओके लिए। ओके, सो यू ऑलरेडी डिड द लॉ सीटी? यस यस। उस टाइम भी मेरा स्कोर 117 था, मतलब टॉप 100 में था मैं महाराष्ट्र में। ओह दैट्स ग्रेट। अ, तब आपके चैनल पे सब पूरा पता चला था, मतलब हाउ टू अप्लाई फॉर सीईटी टिल एडमिशन प्रोसेस, एक एक राइट। वीडियो के लिए मैं वेट करता था। और सब कुछ आपके मतलब वो सीईटी के दौरान मुझे पता चला था, और अच्छा गाइडेंस मिला था। तब मुझे पता था कि एक चैनल है जो डेडिकेटेडली महाराष्ट्र सीईटी के लिए काम करता है। राइट राइट। सो कितना हेल्प होता है चैनल से, बिकॉज बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं, तो एज पर सर योर चैनल एक्सपीरियंस। तो बहुत सारे रहते हैं, बट एक रहता है ऑथेंटिक और हम्म। कंफर्म इंफॉर्मेशन के लिए। राइट। मतलब आपका जो रहता है, आपका ऑलरेडी एनालिसिस हुआ हुआ रहता है सब कुछ, हम्म। और जो भी बात है आप जो ऑफिशियल रहता है वही आप डिस्कस करते हो। करेक्ट करेक्ट। तो एक मुझे जो रहता है कि टाइम वेस्ट ट्रस्ट। नहीं होती, एक ही वीडियो में सब अपने को ऑफिशियल मिलना चाहिए, तो आपके चैनल का मुझे वो हेल्प होता ही है। एक ट्रस्ट भी है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, क्योंकि दे आर कनेक्टेड विथ अस, तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। अभी रिसेंटली देखो एक इशू भी हुआ था, देन आई आल्सो विजिटेड द सीईटी सेल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। और जब मैं उनसे मिल के आया, अभी इस साल का जो उनका क्वेश्चंस का प्रॉब्लम था, तो आई विजिटेड देयर, आई मीट कमिश्नर्स जो सीईटी सेल के कमिश्नर्स हैं। देन उसके बाद उन्होंने आफ्टरनून के बाद उन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज किया कि जो क्वेश्चन चैलेंज है किसी ने भी किया है तो उसका बेनिफिट सबको मिलेगा। ओके सर, नहीं सर, मुझे पता है आप भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हो, ये सब हम्म। आपका जो सिस्टम है। और आपका प्लस पॉइंट ये है कि आप डेडिकेटेड टू सीईटी हो। आपका राइट। फोकस कंप्लीटली वही है, इसलिए हम्म। स्टूडेंट लोगों का भी ट्रस्ट है। और जो भी सब्सक्राइबर है आपके, वो हम्म। आपके नोटिफिकेशन के लिए वेट करते चलो चलो, ग्रेट ग्रेट। सो ऐसे ही व्यूअर्स, रिस्पॉन्सिबल व्यूअर्स, एंड उसी तरह से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम भी करते हैं। सो नाउ कमिंग टू द बीएड पार्ट। सो इतना अच्छा परसेंटाइल है आपका, 99.89 परसेंटाइल। सो टॉकिंग टू अबाउट द सेक्शंस, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ 3 सेक्शन एज वेल एज ईएलसीटी। तो फर्स्ट पेपर जो है रीजनिंग, जीके एंड टीचर एप्टीट्यूड। सो विच सेक्शन इज अ डिफिकल्ट फॉर यू, एंड स्पेसिफिकली जीके के लिए क्या प्रिपरेशन था, रीजनिंग के लिए क्या था थोड़ा सा, टीचर एप्टीट्यूड के लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी था, एज इफ यू कैन शेयर, सो दैट वुड बी बेटर फॉर द व्यूअर्स जो देख रहे हैं, तो उनको एक्चुअल एस्पिरेंट का एक व्यू मिलेगा। सर टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए हम्म। स्पेशल कुछ फोकस मतलब प्रिपरेशन नहीं किया था। ऑलरेडी यूट्यूब पे जो है अवेलेबल मटेरियल वहां से ही किया था। और हम्म। उसके लिए ज्यादा टाइम डेडिकेट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कम टाइम में बहुत सारा आउटपुट मिलता है टीचिंग एप्टीट्यूड हम्म। में। हम्म। अच्छा स्कोर लाने के लिए आपका मैथ रीजनिंग ही चाहिए। हम्म। और जीके सबके लिए कॉमन बेस है, क्योंकि कितना भी किया तो उसमें आउटपुट उतना मिलता नहीं है। हम्म। तो मेरा पहले से क्लियर था कि ये 3 सेक्शन में से अपने को जो स्कोर करना है वो मैथ्स और रीजनिंग में ही हो सकता है। बेसिकली रीजनिंग ही है ना, मैथ का तो कुछ एक आध दो क्वेश्चन रहता है वो नहीं, इस एग्जैक्टली बार थोड़ा ज्यादा आया था सर मैथ का। हम्म। 5 to 6 क्वेश्चन आए थे मैथ के, मतलब मैथ तो रहता ही नहीं है, रीजनिंग ही रहता है, बट इस बार 5 to 6 क्वेश्चन मैथ के मुझे दिखे थे। तो जीके के लिए मैं जो ऑलरेडी मैं एक प्राइवेट कोचिंग क्लास में टीचिंग करता हूँ 9th-10th के लिए, सोशल स्टडीज प्लस हम्म। साइंस। तो वो सोशल स्टडीज की वजह से मेरा ऑलरेडी बेस थोड़ा पक्का था ही। हम्म। और करंट अफेयर के लिए एग्जाम के 3-4 महीने के पहले के करंट अफेयर प्रिपेयर किया था हम्म। यूट्यूब चैनल से ही। और राइट आपके चैनल पे जो भी कंटेंट है वो फॉलो करो, और मॉक टेस्ट। राइट। सो नाउ कमिंग टू द मॉक टेस्ट, आपने बोला मॉक टेस्ट, तो कितने मॉक टेस्ट आपने लिखे थे? सब पहले वीकली एक मॉक टेस्ट देता था, बट एग्जाम के पहले कंटिन्यू 5 दिन वो मॉक टेस्ट दिया था, क्योंकि वो टाइम जो था 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन, और वो माइंडसेट के साथ जाने का था। राइट। तो कंटिन्यूअसली मतलब 5 मार्च को मेरा एग्जाम था, तो उसके हम्म। 5 दिन पहले मैं वही टाइम पे जो मेरे टाइम था मुझे दिया हुआ हॉल टिकट पे, आफ्टरनून सेशन, वही सेशन ओके। में मॉक टेस्ट सॉल्व करता था। चलो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने रेस किया कि उसी सेम टाइम पे आप मॉक टेस्ट अपीयर करते थे, बिकॉज उस टाइम पे क्या मेंटल प्रेशर होगा, क्या आपके स्टेटस होगा, देन यू कैन मैनेज कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और उस टाइम पे आप कैसा परफॉर्म करोगे। सो ये काफी अच्छा पॉइंट है फॉर अदर एस्पिरेंट जो इस चीज को देख रहे हैं, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं,
तो जो एग्जाम टाइम होता है उसी टाइम पे अगर से कोई मॉक टेस्ट को अपीयर करे तो दे कैन बैलेंस दैट टाइम, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि वो आफ्टर लंच के बाद में मेरा वो था, तो हम्म। उसके मुझे मतलब ऑलरेडी एक अडॉप्ट करने के लिए एक वीक पहले ही मैं वो फैमिलर प्रैक्टिस फैमिलर करता होने के लिए उस टाइम से, कि उस टाइम पे मेरा क्या प्रोडक्टिविटी रहेगी या मेरा उस टाइम पे परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। तो मॉक टेस्ट उस दिन भी मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं सर प्रेशर, क्योंकि वो मॉक टेस्ट का जो प्रैक्टिस करते आ रहा था वही टाइम पे वही, इसमें सिर्फ हम्म। सिटिंग मतलब प्लेस अलग था, बट सिचुएशन तो सेम ही था मेरे लिए। मैं एक्चुअली उसी क्वेश्चन पे आ रहा था कि जो मॉक टेस्ट आपने दिया था और जो एक्चुअल एग्जाम था, हाउ इट वाज रेलिवेंट। टू बी ऑनेस्ट, मॉक टेस्ट के क्वेश्चन थोड़े मुझे लगे हार्ड थे, हम्म। टीचिंग एप्टीट्यूड के हो या जीके के हो, हम्म। वो एक लेवल थोड़ा आगे था। और राइट। पेपर में मुझे वो प्रेशर नहीं लगा इतना। हम्म। अ, और मैथ रीजनिंग का जो था वो टाइम ऑलरेडी मेरा मतलब मेरा जो था 40 क्वेश्चंस इन 40 मिनट्स या 50 मिनट्स, क्योंकि वो राइट। 90 मिनट्स का पेपर है। 20 मिनट्स में लीगल लीगल सॉरी टीचिंग एप्टीट्यूड हो जाता है, हम्म। 20 मिनट्स में जीके हो जाता है। हम्म। रिमेनिंग जो है 50 मिनट्स, वो मैथ और रीजनिंग के लिए सफिशिएंट था। तो बेसिकली सीक्वेंस क्या था आपका अटेम्प्ट करने का पेपर को। सबसे पहले सर मैं जीके किया था, क्योंकि हम्म। मुझे जीके का जो थोड़ा प्रेशर लगता था वो मुझे पहले हम्म। 20 मिनट्स में हटाने का था। बाद में क्योंकि पूरा पेपर मेरा ही था, राइट राइट। जो भी रहता है होगा 70 मार्क्स जो रहेंगे मेरा थर्टी वो। थर्टी क्वेश्चन आपका जीके से आएगा और 30 हाँ, क्वेश्चन रीजनिंग से रहता है, 40 क्वेश्चन टीचर एप्टीट्यूड से। हाँ, वो जो रिमेनिंग 17 क्वेश्चंस थे उस पे मैं स्ट्रांग था, ऐसा बोलना चाहता हूँ। तो ओके। पहला जो 30 मार्क्स था वो मुझे 20 मिनट्स में मुझे वो हटा लेने का था, क्योंकि तब मैं फ्रेश भी था। और बाद में हम्म। मुझे पता है कि आफ्टर एक बार जीके हो गया, क्योंकि मुझे अगेन जीके पे जाना नहीं है, क्योंकि एक बार आता है तो आता है, नहीं आता है तो कितना भी सोचो तो आता नहीं है। परफेक्ट परफेक्ट। उस पर रिटर्न जाने का ही नहीं है, सिर्फ एंड स्कोरिंग फिर अपना टीचिंग हम्म। एप्टीट्यूड। और इसमें और एक था कि टीचिंग एप्टीट्यूड ऑप्शन इजी रहता है, हम्म। बट क्वेश्चन लिटिल बिट मतलब अपन क्या हो जाता है वो थोड़ा ग्रांटेड लेते हैं क्वेश्चन कि बहुत ही इजी हो गया है। तो उसमें राइट राइट। थोड़ा शार्प माइंड से देखना पड़ता है, आंसर मिल जाता हम्म। है। एक्चुअली वो साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, अगर बहुत लीनियंट ले लिया तो शायद से हम उतना बेटर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे राइट, राइट। और टीचर जीके एप्टीट्यूड में का। अगर फॉर एग्जांपल अभी उसमें थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी काम आता है सर जीके में। मुझे कोई हम्म। कोई क्वेश्चन पता नहीं था, बट एक लॉजिकल अप्रोच से आंसर तक मैं जाता था। मतलब एक आधा कोई क्वेश्चन पूछा हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे एक क्वेश्चन था शायद, हम्म। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2015 में इम्प्लीमेंट हुए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फर्स्ट कॉन्फ्रेंस 2020 में हुआ। तो पहला कॉन्फ्रेंस तो इम्प्लीमेंट के पहले होगा ना, तो ये तो थोड़ा सा बेसिक था, लॉजिक था। राइट। तो वो कॉमन दोनों ऑप्शन, सेंस से आप हाँ एलिमिनेट दोनों कर सकते ऑप्शन हो। रॉन्ग थे। तो वो ये माइंडसेट डेवलप होता है अगर 5-6 दिन पहले अपन ने मॉक टेस्ट सॉल्व किया ना, तो ऑटोमेटिकली हम्म। ऑप्शन को कैसा देखना है, क्वेश्चन को कैसा पढ़ना है। और क्वेश्चन में जो रहता है ग्रामेटिकल पार्ट, मतलब इज आर दीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इज रहेगा तो सिर्फ सिंगल ही ऑप्शन रहेगा, उसमें बोथ ए एंड बी नहीं आ सकता है। ऐसा छोटी छोटी हम्म। बातें डेवलप हो जाती है जब मॉक टेस्ट डेवलप करते हैं। विच ऑफ द राइट फॉलोइंग राइट ऑप्शंस आर करेक्ट, आर करेक्ट, तो फिर मल्टीपल चॉइस में 2 या 3 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, तो सिंगल राइट। ऑप्शन तो उसमें रिजेक्ट ही करना है। तो ऐसा वो डेवलप हो गया था, इसलिए फिर कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं लगा था। तो क्वेश्चन रीड करना बहुत जरूरी है, उसमें के छोटे छोटे पार्ट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे अगर नहीं आता भी होगा तो अपन ऑप्शन टिक कर सकते हैं। मेरा 84 क्वेश्चन राइट है सर इसमें, आपने इवेलुएट किया है उसको। इवेलुएट किया तो 84 क्वेश्चन राइट थे। चलो, बहुत अच्छी पॉइंट आपने यहाँ पे रेज किया कि एक एलिमिनेशंस कैसे कर सकते हैं, हाउ टू रीड द क्वेश्चंस, और ये डेवलप कर सकते हैं ड्यूरिंग द मॉक प्रैक्टिस। सो काफी हेल्पफुल होगा स्टूडेंट्स के लिए जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, कि आप एलिमिनेशन मेथड, इट मींस इफ यू आर रीडिंग या फिर आपने बहुत अच्छे से स्टडी नहीं किया है, तो एक स्किल है जो कि एलिमिनेशन मेथड आप डेवलप करो। वो हम क्लास में भी सिखाते हैं कि आप आउट ऑफ 4 ऑप्शन, अगर कभी आपको तुक्का भी मारना है तो कैसे आप एटलीस्ट 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। राइट, राइट। Okay, okay. So now coming to the next point, it means which college basically you are targeting? सर मैं ऑलरेडी मेरे होम टाउन में हूँ, तो यहाँ पे हम्म। गवर्नमेंट कॉलेज है। हम्म। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मैं टारगेट करूंगा। ओके ओके। अ, सो इधर मतलब हम्म। यहाँ पे सर प्लेसमेंट का कुछ रहता नहीं है, जैसा मुंबई पुणे साइड में प्लेसमेंट का रहता है कॉलेज से।
तो यहाँ पे कोई प्लेसमेंट का रहता नहीं है, जस्ट गवर्नमेंट कॉलेज से अगर सीईटी की बीएड किया है तो एक एज रहता है अदर कैंडिडेट से। अगर वहाँ पे अपन अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे वो देखते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज से आपकी डिग्री है या ओके ओके। एंड एक और जो सेक्शन है ELCT के लिए, उसमें भी काफी अच्छा परसेंटाइल आपका 84.76। सो इंग्लिश के लिए कुछ सजेशंस फॉर द स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, या फिर नहीं। क्या स्ट्रेटेजी थी? हाँ, इंग्लिश के लिए सर उसमें कॉम्प्रहेंशन बहुत इजी पार्ट है, 20 क्वेश्चंस रहते हैं। हम्म 20 क्वेश्चन जो रहते हैं पैसेज पे, बहुत ही इजी था, मतलब एक ही मिनट में अपने को आंसर मिल जाता है। सिर्फ सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो रहता है, वो कैब। हाँ वो क्या आपका, वो पढ़ते वक्त तो मेरा थोड़ा जंबलिंग हो गया था, जहाँ पे सिनोनिम्स था मैंने वो एंटोनिम्स एक बार गलती से क्लिक कर दिया था। वो मुझे कब पता चला, जब मैंने वो अपने को जो आंसर की दिया था सीईटी सेल ने, हम्म तब मुझे पता लगा अरे आपने ये आंसर कैसे क्लिक किया। तो ओके। वो एक है। और इडियम्स और फ्रेजेस के लिए अपना जनरल रीडिंग चाहिए। अभी ऑलरेडी मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता था, ओके। तो उसमें थोड़ा फार वोकेबलरी मेरा ऑलरेडी कवर हो चुका था। सो बेसिकली एक न्यूज़पेपर रीडिंग की जो आपकी हैबिट थी वो काफी हेल्पफुल हुआ। एंड ग्रामर्स ग्रामर्स के लिए बेसिकली व्हाट यू डिड? सर ग्रामर के लिए मैं ऑलरेडी, मतलब जो कोचिंग क्लास में सिखाता हूँ, वो 8 9 10 का जो ग्रामर है राइट। वो नोट्स में रेफर किया था। तो बेसिक ग्रामर उस वहां से कवर हुआ था। ओके ओके ओके। सो काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करके काफी अच्छा लगा, रिलेटेड टू एग्जाम प्रिपरेशंस एंड अबाउट योर स्कोर एंड हाउ दिस जो एस्पिरेंट उनको क्या फॉलो करना चाहिए। काफी कुछ इंफॉर्मेशन आपने बताया वो कैब से रिलेटेड, मॉक टेस्ट एंड स्पेसिफिकली आई वुड लाइक टू थैंक्स कि जो आपने एलिमिनेशन मेथड को यहाँ पे रेस किया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है एस्पिरेंट के लिए। सो एनी फाइनल सजेशन टू न्यू एस्पिरेंट दोज हु आर गोइंग टू अपीयर दिस एग्जाम्स नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट ईयर से अगर मतलब आपको करना है सीट, अभी अपने को पता चला कि परसेंटाइल सिस्टम है, हम्म इसमें एक बड़ा चेंज ऐसा है कि एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है परसेंटाइल सिस्टम। राइट राइट राइट। आपका जो भी स्ट्रांग पॉइंट हो, फॉर हम्म एग्जांपल मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, मैथ और रीजनिंग मेरा स्ट्रांग था, मैं हम्म उसके लिए ज्यादा टाइम डेडिकेट करता था। अगर आपका अदर कोई पॉइंट अच्छा हो, आपका जीके स्ट्रांग हो, तो आप जीके के लिए ज्यादा टाइम दो। पर हम्म प्रिपरेशन 6 to 8 मंथ पहले ही चालू करो। और मॉक टेस्ट बहुत हम्म इंपॉर्टेंट है, वीकली 1 मॉक टेस्ट। जब एग्जाम पास में आता है तब कंटिन्यूअसली 7 to 8 डेज मॉक टेस्ट देना चाहिए, और हम्म। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। ओके ओके। सो काफी इंपॉर्टेंट 3 थिंग्स आपने यहाँ पे मेंशन किया। एक तो 5 6 मंथ बिफोर जो एस्पिरेंट है उनको स्टार्ट करना चाहिए। सेकंड, मॉक का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। इट मीन्स टू अपीयर द मॉक टेस्ट एंड बिफोर एग्जाम जस्ट ट्राई टू अपीयर द एग्जाम। जो मॉक टेस्ट अपीयर करते हैं, जिससे कि आपने इसके पहले भी रेस किया था कि एलिमिनेशन मैथड डेवलप हो जाता है एंड एक हैबिट जनरेट हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, और क्वेश्चंस को रीड करना काफी केयरफुली होता है, स्पेसिफिकली टीचर एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में। राइट? राइट सर। Okay, thanks, Gaurav. Thanks to come here to share your experience about your success, about your percentile and preparation strategy in this podcast. And definitely, it will be helpful for the viewers जो भी students इसको देख रहे हैं, and इस podcast से जो भी message उनको learn होता है, जो भी strategy learn होती है, definitely it will be helpful for their preparations. So once again, thanks to come here and wish you all the best for your future. ओके सर, एंड थैंक यू सर। और आपके लिए और एक है हाँ कि हाँ। वी आर वेरी हैप्पी दैट आपने डेडिकेटेडली बीएड के लिए अभी एक चैनल किया है। तो हम्म जो अपना जनरल चैनल था उस पे मतलब थोड़ा सॉर्ट आउट करने में प्रॉब्लम आता था, राइट अभी राइट। इजीली हो जाता है। थैंक यू सर। चलो, थैंक्स टू कमिंग। ओके सर, बाय।